Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are doing good. So in today's lecture, we are going to start mathematics grade 10 book that is based on National Book Foundation. So students, the contents of this book are chapter number 1 is complex numbers, then quadratic equations, and third is matrices and determinants. Fourth one is linear and quadratic inequalities. Fifth one is algebraic fractions. Six is functions and graphs. Next, vectors in plane. Eight is application of trigonometry. The next one is chord and arcs of a circle. Chapter number 10 is based on tangents and angles of a circle. Then practical geometry of a circle, and last one is basic statistics. That is based on the subject statistical theory. So, chapter number 1 is complex numbers. We will start from chapter number 1, that is complex numbers, and we will study in detail. We will also solve the exercises of all the chapters one by one, and then we will further discuss all the chapters, chapter 2, 3, 4, and up to so on, chapter 11. So, first of all, आपको पता होना चाहिए कि what is complex numbers. Complex numbers basically क्या होते हैं and why we use complex numbers. सो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. सो व्हाई वी यूज्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. तो फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्यों यूज कर रहे हैं अगर हमारे पास इतने ज्यादा मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंट नंबर टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, तो हम फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्यों यूज करते हैं. सो इन टूडेज lecture we will discuss about why we use complex numbers. Until the 16th century, mathematicians were puzzled by square roots of a negative number. For example, the solution of x square minus 2 is equals to 0. अगर हम देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन है आपके पास x square माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो अगर हम इसको सॉल्व करें इक्वेशन को तो x square इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 2 हो जाएगा. एंड नेक्स्ट फर्दर x इज इक्वल्स टू, जब भी आप स्क्वायर खत्म करते हैं तो आपके पास स्क्वायर रूट आ जाता है और वो प्लस माइनस के साइन आता के साथ आता है. सो आपके पास x की 2 वैल्यूज आ जाती हैं, एक माइनस अंडर रूट 2, एक प्लस अंडर रूट 2. सो आपके पास ये सोल्यूशन हो जाता है. x की आपके पास दो वैल्यूज आती हैं तो x के सोल्यूशन आपके पास 2 आ जाते हैं. बट what are the solutions of x square plus 2 equals to 0. बट हमारे पास क्या solutions होंगे अगर आपके पास इक्वेशन जो है x square plus 2 equals to 0 हो जाए. तो इसका क्या सोल्यूशन होगा इन केस अगर मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाती हूँ तो -2 हो जाएगा. तो अभी तक आपने मैथमेटिक्स में ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ी, ऐसा कोई नंबर नहीं पढ़ा या ऐसी कोई वैल्यू नहीं पढ़ी है, ऐसा कोई टॉपिक डिस्कस नहीं किया कि जिसमें आपके पास जो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है. टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इमेजिनरी नंबर्स वर डिफाइंड. सो a French mathematician, René Descartes, was the first to emphasize the imaginary nature of numbers, positing that one can imagine as many numbers as already mentioned in each equation. एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उसने क्या कहा था कि कोई भी अगर हमने इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी होती है तो हम खुद से इमेजिन कर लेते हैं कि हम इस इक्वेशन में ये नंबर अगर हम इसको ऐड करें या इसमें पुट कर दें इस वेरिएबल की जगह तो हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है. बट समटाइम्स इस तरह नहीं होता. बट समटाइम्स देयर इज नो क्वांटिटी दैट मैचेस व्हाट वी इमेजिन. समटाइम्स ऐसा नहीं होता कि जो हम इमेजिन कर रहे होते हैं वही मैच हमें एक्यूरेटली रिजल्ट मिल जाए. However, in the 16th century, an Italian mathematician, Girolamo Cardano, proved that having a negative term inside a square root can lead to the solutions of an equation. Similarly, later in the 18th century, mathematician Carl Friedrich Gauss consolidated Cardano's premises in addition to develop a treatise on complex numbers in the plane and thereby establish the modern basis of the term. So इस तरह से further mathematicians ने इस पे वर्किंग की है और ये रिजल्ट्स निकाले हैं कि why we use complex numbers and basically complex numbers होते क्या है. So this is definition of the complex number. A simple definition of the complex numbers. A complex number is an expression. एक आपके पास एक ऐसा expression होता है जिसकी फॉर्म आपके पास x plus iota y होती है where x y belongs to the real numbers. ठीक है. इस तरह के आपके पास जब भी एक फॉर्म कोई भी आपके पास फॉर्म आ जाती है x प्लस
आयोटा वाई। तो सो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से। समटाइम्स जो है वो आप सी से भी इस तरह से डिनोट कर रहे होते हैं, तो दैट इज आल्सो कम्प्लेक्स नंबर्स। सो बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, ऐसी फॉर्म होती है जिसमें आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। सो आयोटा इज बेसिकली द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी पार्ट। अभी हम डिस्कस करते हैं कि आयोटा क्या है एंड वाई। एक्स और वाई दोनों आपके पास कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। एंड व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स इज बेसिकली द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड द रियल नंबर। सो इट इज डिनोटेड बाय जी, एंड इस तरह से आप जो है इसको लिखते हैं जी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। सो नेक्स्ट इज इमेजिनरी एंड complex numbers. नेगेटिव नंबर्स डू नॉट हैव स्क्वायर रूट्स इन द रियल नंबर सिस्टम। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं जिनके साथ माइनस का साइन आ रहा होता है, ठीक है, उनका आपके पास कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है इन द रियल नंबर सिस्टम। हाउएवर अ लार्जर नंबर सिस्टम दैट कंटेन्स द रियल नंबर, कुछ ऐसे बहुत बड़े सिस्टम, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं जिनके अंदर रियल नंबर मौजूद होते हैं, उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि जो नेगेटिव नंबर है ना उसका भी आपके पास स्क्वायर रूट आ जाए। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। इस तरह के सिस्टम को क्या कहा जाता है? कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। इट मेक्स use of a number that is the square root of -1, we call this number iota। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं हम उनको क्या कहेंगे कि जिनका स्क्वायर रूट आपके पास -1, स्क्वायर रूट -1 जो नंबर्स होंगे उनको कहा जाएगा आयोटा। लेट्स जस्ट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो अब देखें आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे आप जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जब आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे -1 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू, जब आप स्क्वायर को खत्म करते हैं तो अंडर रूट आ जाता है, तो अंडर रूट -1। सो अंडर रूट -1 आपके पास जो है वो आयोटा के इक्वल होता है। द टर्म आयोटा इज द सोल्यूशन ऑफ, तो जो आपके पास जो टर्म आयोटा है वो बेसिकली सोल्यूशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस टाइप की अगर इक्वेशंस आ जाए कि जिनकी लेफ्ट पे आपके पास नेगेटिव रियल नंबर आ जाता है, तो इस तरह की इक्वेशंस का सॉल्यूशन आयोटा है, विच इज डिफाइंड एज आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 वेयर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने याद रखनी है, फिक्स्ड होती है, दैट इज -1, and iota is equals to under root -1 since the square of the real number is not negative। जो स्केयर होता है किसी भी रियल नंबर का, अगर आप स्केयर लेते हैं तो वो आपके पास नेगेटिव तो नहीं होता, therefore iota is not a real number। बट iota जो है वो आपके पास रियल नंबर तो नहीं है, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे एंड इज कॉल्ड द इमेजिनरी यूनिट। इसको हम इमेजिनरी यूनिट कहेंगे। यूजिंग iota we can define square root of any negative number। iota को यूज करके हम जो है वो स्केयर रूट निकाल सकते हैं किसी भी नंबर को, जो है वो हम सोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। So the next is to express the root of the negative numbers in terms of iota। अगर आपने जो है वो नेगेटिव नंबर्स को लिखना हो इन टर्म्स ऑफ आयोटा, वी कैन यूज द फैक्ट दैट इन द कम्प्लेक्स नंबर्स। अब कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर देखें, अब आपके पास एक आ गया है -x अंडर रूट स्क्वायर रूट -x। सो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट x। इसको हम जो है वो सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि स्क्वायर रूट अभी आपने जो है वो डिस्कस किया है, स्क्वायर रूट -1 जो है वो आयोटा के इक्वल होता है। सो आयोटा अंडर रूट x, when x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड आयोटा इज द इमेजिनरी नंबर। अगर आपके पास x जो है वो कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, लाइक 1 2 3 4 पॉजिटिव रियल, एंड आयोटा जो है वो कोई इमेजिनरी नंबर होगा, द नंबर आयोटा अंडर रूट एक्स। तो इस तरह जो फिर आपके पास आयोटा अंडर रूट एक्स होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्योर इमेजिनरी नंबर। सो नेक्स्ट इज एक्सप्रेस ईच नंबर इन टर्म्स ऑफ आयोटा। आपने जो है वो एक्सप्रेस करना है हर नंबर को इन टर्म्स ऑफ आयोटा। सो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? फर्स्ट एग्जांपल इज अंडर रूट -5। स्क्वायर रूट -5 को आप कैसे लिख सकते हैं? -1 मल्टीप्लाई 5। सो अब इन दोनों को आप सेपरेट कर सकते हैं, या आपके पास स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज होती हैं, आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, as we know that square root -1 is equals to iota, so iota under root 5, इसको आप लिख सकते हैं under root 5 iota। Next example is square root -9। Square root -9 we separate into -1 multiply 9। So सेपरेट करते दोनों को अगर आप, तो -1 स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा। एंड इसी तरीके से आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट -1 होता है वो आयोटा का इक्वल होता है, और स्क्वायर रूट 9 जो है वो 3 का स्क्वायर आपके पास 9 हो जाएगा, तो 3 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज सी पार्ट है
स्क्वायर रूट माइनस 17, माइनस आप बाहर जो आपके पास है आउटसाइड पे वो वैसे ही एज इट इज आप चलाएंगे, लेकिन अंदर जो है आपके पास -17, जिसको आप लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 17। सो माइनस आप एज इट इज लिखें और उसके बाद √-1 मल्टीप्लाई √17 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास माइनस आयोटा स्क्वायर रूट -1 आयोटा होता है, एंड √17 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 17 आयोटा। नेक्स्ट इज डी पार्ट है आपके पास माइनस इंटू स्क्वायर रूट -64। इसी तरीके से आप माइनस जो है वो एज इट इज लिखेंगे, और अंदर जो है वो आप -1 मल्टीप्लाई 64 कर देंगे। नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 64, एंड नेक्स्ट आप जो है माइनस स्क्वायर रूट -1 आयोटा होता है √64, एंड आपको पता है कि √64 जो है वो 8 के इक्वल है। 8 का स्क्वायर अगर आप लें तो वो √64 हो जाता है, ठीक है। सो माइनस आयोटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज नेक्स्ट आपके पास है कि अगर आपके पास देखें 3 आयोटा मल्टीप्लाई 5 आयोटा, इस तरह से भी आ जाता है। 3 आयोटा मल्टीप्लाई 5 आयोटा, सो 3 5 15, एंड आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्केयर, एज वी नो दैट आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। सिंपल आयोटा अगर है आपके पास तो वो स्केयर रूट -1 होता है, बट अगर आयोटा स्केयर है तो वो आपके पास -1 होता है। सो 15 इंटू -1 -15। लास्ट वन इज -√5 मल्टीप्लाई स्केयर रूट -20। सो स्क्वायर रूट -5 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई इसको हम लिख सकते हैं -20 को -1 मल्टीप्लाई 20। सो स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 20 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट -1 आयोटा इंटू √5 मल्टीप्लाई आयोटा इंटू √20। सो अब आप जो है वो आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, एंड स्क्वायर रूट 5 इंटू 20 आपके पास 100 हो जाएगा। सो इट इज इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा -10 के। Next is the imaginary number. An imaginary number is a number that can be written a plus b iota, where a and b are real numbers and b is not equal to 0. So imaginary numbers basically आपके पास दो नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको लिखा जाता है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, जिसमें a और b दोनों जो है वो आपके पास रियल नंबर्स होते हैं, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। b को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर b 0 होगा तो आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा, एंड सिर्फ आपके पास जस्ट एक a रह जाएगा। a is a रियल पार्ट, ठीक है। देन है व्हेन a एंड b आर द रियल नंबर्स, जब आप a और b दोनों को रियल नंबर ले रहे हैं, एंड b इज अलाउड टू बी 0, और हम b को क्या अलाउ करें कि वो 0 के इक्वल है, द नंबर a प्लस बी आयोटा इज सेड टू बी कम्प्लेक्स। ठीक है, अगर आपके पास b 0 हो जाता है तो इस तरह जो आपके पास इज अलाउड टू बी कम्प्लेक्स द नंबर, ऐसे नंबर जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होते हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड बोथ a एंड b कैन बी 0, और हो सकता है कि या a 0 हो जाए या मे बी b 0 हो जाए। So these all are the definitions of the complex numbers. So key facts हैं आपकी, the number 2 plus 5 iota, 7 minus 11 iota। ठीक है, अगर आपके पास एक नंबर्स हैं 2 plus 5 iota, अब इसमें 2 जो है वो a है, a equals to 2 and b equals to 5, एंड नेक्स्ट में अब आपके पास जो है वो a equals to 7, b equals to -11। ठीक है, b आप -11 लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि आपके पास जो जनरल फॉर्म होती है कम्प्लेक्स नंबर की वो a प्लस बी आयोटा होता है। सो आपने जब भी b या ए लेना है, इन केस अगर उसके साथ नेगेटिव साइन है तो आप नेगेटिव साइन को भी कंसिडर करेंगे। एंड 18 आयोटा, 18 आयोटा में अगर आप देखें तो सिर्फ बी की वैल्यू आपके पास 18 है, ए इसमें 0 है, और इमेजिनरी एज बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये तमाम आपके पास इमेजिनरी होते हैं क्योंकि इसमें बी 0 के इक्वल नहीं है, बट दे आर ऑल्सो कम्प्लेक्स नंबर। सो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाइक 5 आयोटा विच कुछ ऐसे कम्प्लेक्स नंबर्स जैसे देखिए 5 आयोटा है जिसमें a जो है वो 0 के इक्वल होता है, बट b इज नॉट इक्वल्स टू 0 आर इमेजिनरी नंबर्स विद नो रियल पार्ट। देखिए ये भी आपके पास इमेजिनरी नंबर्स है 5 आयोटा, कि इसमें जो है कोई रियल पार्ट तो नहीं है, a तो 0 हो गया। सच नंबर्स आर कॉल्ड प्योर इमेजिनरी नंबर्स। दोज नंबर्स दैट हैज रियल अ 0 रियल पार्ट, ठीक है, जिनमें रियल पार्ट 0 हो जाता है, those numbers are called the pure imaginary numbers. As 6 can be written as 6 plus 0, 6 को आप लिख सकते हैं 6 plus 0 iota। So
जीरो जब आयोटा से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही आ जाता है, बट हमने इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखना है तो हम लिख सकते हैं सो ए इज इक्वल 6, बी इज इक्वल 0, देयरफॉर एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद जीरो एज। हर रियल नंबर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, कोई भी अगर आप रियल नंबर ले लें, ठीक है। और आपके पास अगर बी जीरो है तो आप फिर भी उसको इन टर्म्स ऑफ जीरो आयोटा लिख सकते हैं। सो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद जीरो एज इमेजिनरी पार्ट। द सेट ऑफ complex numbers is denoted by C, कैपिटल सी से भी आप लिख सकते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। एंड आर रियल नंबर इज आल्सो अ सबसेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो नेक्स्ट है आपके पास ये एक टेबल आपके बुक में बना हुआ है, द कॉम्प्लेक्स नंबर्स ए प्लस बी आयोटा। अब देखिए आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। देखिए 7 है, 2 है, 2 प्लस 7, जस्ट अगर 7 है तो इट्स मीन 7 प्लस 0 आयोटा है, ठीक है, जिसमें आपके पास ए 7 है एंड बी इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है 2 प्लस 7 आयोटा, सो ए इज इक्वल्स टू 2 एंड बी इज इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट आपके पास है -11 आयोटा, सो बी इज इक्वल्स टू आपके पास अब क्या हो जाएगा -11। सो इसको आगे फर्दर डिवाइड किया है कि इमेजिनरी नंबर्स में एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स आपके पास कौन से हैं? देखिए अब ए प्लस बी आयोटा, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आपके पास बी जीरो नहीं होगा तो देखिए 7 प्लस 3 आयोटा। अब इसमें आपके पास ए की वैल्यू जो है वो ए प्लस 7 प्लस 3 आयोटा है। ए आपके पास 7 है, बी आपके पास 3 है। नेक्स्ट इज आपके पास 2 आयोटा। 2 आयोटा के अंदर अगर आप देखें तो ए जो है वो जीरो है आपके पास। सो ये भी आपके पास एक इमेजिनरी नंबर है। एंड नेक्स्ट इज -1/2 आयोटा। अब ए आपके पास जीरो है लेकिन बी की वैल्यू आपके पास -1/2 है। सो दीज ऑल आर द इमेजिनरी नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स दैट आर रियल नंबर्स। सो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स कब होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स? जब उनका जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना, बी, वो जीरो हो जाए। सो ए प्लस बी होता है, आपके पास अगर बी जीरो है तो ए की वैल्यू 4 √7 -11 6। सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 4, we can also write it as 4 plus 0 iota √7 plus 0 iota, next -11 plus 0 iota, and last one is 6 plus 0 iota, क्योंकि आप इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लिख सकते हैं रियल नंबर्स को भी। So next one is complex numbers a plus b iota, where a is not equals to zero, b is not equals to zero। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो a और b दोनों जीरो के इक्वल नहीं है, तो 2 + 3 आयोटा एंड 5 - 7 आयोटा। एंड प्योर इमेजिनरी नंबर्स में अगर आप देखें तो प्योर इमेजिनरी नंबर्स कब होते हैं? जब आपके पास रियल पार्ट जो है वो जीरो हो जाता है। सो a इज इक्वल टू जीरो, b इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो आपके पास क्या हो जाएगा? -7 आयोटा, 1/3 आयोटा एंड 19 आयोटा। उसके बाद आपके पास जो है फर्दर आ जाता है irrational and rational numbers. So irrational numbers are basically those numbers that can be written in the form of p by q, where q is not equals to zero, ठीक है। आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। And irrational numbers are those numbers that cannot be written in the form of p by q। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाते, लाइक स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 अगर आप चेक करें कैलकुलेटर पे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 1.4141, आई थिंक इस तरह से आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। सो दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। √3 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर, √5, √7। सो दीज ऑल आर द इरेशनल नंबर्स। सो ये आपके पास था एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, व्हाई वी यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एंड कुछ हमने एग्जांपल्स देखी एंड आयोटा को डिस्कस किया कि आयोटा क्या होता है एंड आयोटा की वैल्यूज फिक्स होती हैं। iota is equals to square root -1 and iota square is equals to -1। सो ये आपके पास जो था एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इससे आगे जो है वो डिस्कस करेंगे हाउ टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई देम। सो देन फर्दर हम जो है इनकी एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करेंगे। हम ऑल एक्सरसाइज की जितनी भी आपके पास एक्सरसाइजेस हैं उनके एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस को हम जो है वो फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड आपको जो है वो चैप्टर के नोट्स अवेलेबल होंगे व्हाट्सएप पे, वो आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको जो है वो चैप्टर के सॉल्व नोट्स, सॉल्व एक्सरसाइजेज जो है वो
मिल जाएंगी। सो आपने जो है इस टॉपिक को दोबारा से स्टडी करना है, और अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।